بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اور سب بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تندرستی دے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آج جمعۃ المبارک ہے تے اسی تیار ہو کے مسجد ال جا رہے ہیں تے انشاءاللہ جمعے کی تیاری مکمل ہو گئی ہے تے ہن انشاءاللہ جا کے بیان سننے ہیں، نال تانوں سنانے ہیں بیان تے ماشاءاللہ جی۔ علی محمد مسجد صاحب نہیں آئے تھے، انشاءاللہ ہی ہوں مسجد کے قریب پہنچ گئے ہیں تے جا کے بیان سننے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله وصدق رسوله ونحن على ذلك لمن الشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رحمن اغثني بالديان مغلوب فانتصر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ نہایت بات محترم حاضرین و سامعین، سورہ آل عمران کی آیت پاک اور ایک حدیث پاک میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ دو چیزاں پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے چ اطاعت و پیروی اتباع انہاں تیناں لفظاں نوں اکٹھے کر لو۔ مطلب ہے کہ دنیاوی زندگی کے اندر خواہ انہاں چیزاں کا تعلق عبادات نال ہوے، معاملات نال ہوے، انساناں دے نال ہوے، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہوے، جدوں انسان کچھ کرن لگے تے انہوں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کیا میں اپنے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت دے مطابق کام کر رہے ہیں، انہوں دے حکم دے مطابق ہے،
یا میں اپنی مرضی کر رہا یا دنیا کی مرضی سے چل رہا. اگر تے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کے اندر، پھر تے بہت اچھی بات ہے، وہ ذکر اج کی گفتگو کے اندر آئے گا. اگر کلمہ پڑھنے تو بعد کوئی شخص اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے مخالفت دے اندر کوئی عمل کرے گا، وہ پھر آخرت دے اندر تے ہے ہی ہے نا بات، دنیا دے بھی بندے کو بھوگنا ہے. قرآن مجید کی آیات نے بتایا کہ لوگوں کو ڈرنا چاہیے اس گل کو کہ اپنے پیغمبر علیہ السلام دی مخالفت دے وچ کوئی عمل کیتا جائے. اسی بظاہر لگنے ہیں جنہیں اطاعت کر رہے ہیں، لیکن اصلاً اسی مخالفت ہی کر رہے ہیں. سارا کوئی عمل نیت نال نہیں ہوتا کہ اسی پوچھیے علماء کرام کہ جناب یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز ٹھہرایا یا ناجائز، یہ حکم دیتا ہے یا منع کیتا ہے، صحابہ کرام نے کام کیتا ہے یا نہیں کیتا، فقہ دے اندر کی حکم ہے، حدیثاں کی کہندیاں اور قرآن کی کہندا ہے. اسی لوگ یہ چیز نہیں پوچھتے. یہ جڑی گفتگو پچھلا پورا مہینہ میلاد شریف کے حوالے دے نال میں کیتی، انہاں وچ یہی گلاں تہاڈے سامنے پیش کیتیاں. اج یہ ہے کہ جڑی اطاعت ہے نبی دی، اپنے رسول دی اطاعت، یہ ایک مسلمان دے اوپر ضروری ہے. اگر کوئی شخص اپنے نبی کی اطاعت نہیں کرتا تو وہ مسلمان کیویں ہے؟ جڑی آیت ہے قرآن مجید کی، یہ اندر یہ دسیا گیا ہے کہ اگر تسی اللہ دے نال محبت رکھتے ہو اور اللہ دی نظر دے اندر محبوب بننا چاہتے ہو تے پھر تانوں فتبعونی، اے میرے نبی انہاں نوں کہہ دیو، اگر تسی اللہ دی محبت چاہتے ہو تے فتبعونی، پھر میرے پیچھے چلنا پڑے گا، میری اتباع کرنی پڑے گی. اور جدوں تسی میری اتباع کرو گے پھر وہ نتیجہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب بنا لے گا اور یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اللہ تعالیٰ محبوب بھی بنا لے گا اور ایسے شخص دے گناہ بھی بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ جڑا شخص اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے زندگی دے معاملات دے اندر. قرآن پاک دے اندر دو تین اور مقامات میں تھوڑے سامنے پیش کرنا. ہر بندے کی خواہش ہے کہ مینوں ہدایت مل جائے، میری اولاد نوں ہدایت مل جائے، میرے دوستاں نوں ہدایت مل جائے. قرآن مجید نے پابندی لگائی کیا کہ ہدایت واسطے وا ان تطیعوا تہتدوا، لوگوں تسی اپنے نبی دے پیچھے چلو گے تو ہدایت مل گی، اگر اپنے نبی دے پیچھے نہیں چلو گے تو ہدایت نہیں مل سکتی. وہ کام کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ نظر آئے، وہ کام کنی ہی نیکی کیوں نہ، جنہوں اللہ دے نبی نے نیکی قرار نہیں دیتا وہ شخص اس کام کو اللہ بھی نیکی قرار نہیں دیتا. تے اگر ہدایت چاہتے ہو تو ہدایت انہوں ملے گی جڑا اپنے نبی دی اطاعت کرے گا. اطاعت مان گیا فرما برداری، حکم مان کے چلنا، پیچھے پیچھے چلنا، محبت دے نال حکم نو تسلیم کرنا، حرد جان بنا لینا، سارے تسلیم خم کر دینا اپنے نبی دے کسے حکم دے اگے، ایک سارے اطاعت دے مانی. تے اگر ہدایت چاہتے ہو پھر کی کرو؟ اپنے نبی دی اطاعت کرو. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اگر تسی
چاہتے ہو کہ تھوڑے تے اللہ رحمت نشاط کرے، اللہ تھوڑے تے مہربان ہو جائے، تو پھر اللہ و رسول کی اطاعت کرو۔ کتنا آسان کام ہے، کوئی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہدایت چاہتے ہو، مغفرت چاہتے ہو، اللہ کی محبت چاہتے ہو اور اللہ کا رحم چاہتے ہو تو کی کرو؟ اللہ کے نبی کی اطاعت کرو۔ ایسا آسان فارمولہ ہے، لیکن مسئلہ پھر وہی اتنے آتا ہے، ساڈیاں اپنیاں خواہشاں سانو اطاعت کرن نہیں دیندیاں، شیطان بھی سارے مگر لگا گا، کدوں چاہے گا کہ اسی بخشے جائیے۔ اچھا، جنت دے اندر جڑا داخلہ ہے نا، جڑا آدمی نبی دی اطاعت نہیں کرتا وہ بھول جائے کہ میں جنت دے اندر جاواں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے، کل امتی یدخلون الجنت، میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی، الا من ابا، سوائے اس شخص کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ سب جان گے، وہ نہیں جائے گا جڑا کہے گا میں نہیں جانا۔ صحابہ کرام نے سوال کیتا، ومن ابا یا رسول اللہ، کون انکار کر سکتا جنت سے جان کو؟ جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال من اطاعنی دخل الجنہ، فرمایا نبی پاک نے اپنے صحابہ سے کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو وہ وہی تو ہے جو کہتا ہے میں نے نہیں جانا جنت میں، وہی ہے جڑا کہنا میں جنت سے نہیں جانا۔ کون؟ جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت نہیں کرتا۔ اسی ہیں، میں پچھلے جمعے بھی اشارہ کیتا سی تھوڑی خدمت دے اندر، نماز دے اندر کہنے ہیں کہ سانو ایسے انہاں لوگاں دے رستے تے چلا جنہاں لوگاں تے تو اپنا انعام کیتا۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعم انعام، جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا ان کے راستے پر چلا۔ اے ساری دن رات کی دعا ہے۔ اچھا، ہوں قرآن پاک تو اس سوال کا جواب ہے کہ انعام یافتہ لوگاں دے نال اگر تو قیامت والے دن اٹھنا چاہنا ہے، انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ وہ لوگ نے جڑے انعام یافتہ ہیں۔ تے قرآن مجید نے پھر دسیا کہ جڑی تو دعا منگنا ہے ہر روز نماز دے اندر، وہ دا جواب یہ ہے کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن پڑھنے والے ہیں، سن لے، جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو دعا جو منگنا کہ مینوں انہاں لوکاں دے نال شامل کر جڑے لوکاں تے تیرا انعام ہویا، تے پھر سن لے، جڑا شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ شخص قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو انعام یافتہ ہے، وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء کے ساتھ ہوگا، وہ صالحین کے ساتھ اٹھے گا، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ خود قرآن میں کہتے ہیں بہترین لوگ نے، ساتھی رفیق نو کہتے ہیں، انہوں نے رفاقت بہت اعلیٰ درجے دی۔ تے قیامت والے دن انبیاء دے نال اٹھنا، صدیقین، شہداء، صالحین، انہاں دے نال اٹھنا ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ اعزاز کہنا لوگوں کو نصیب ہوئے گا جڑے لوگ اس چند روزہ زندگی دے اندر اپنے سونے نبی دی اطاعت کرتے ہیں، انہاں دیاں سنتاں تے چلتے ہیں۔ فرض تے فرض ہے نا، انہاں دیاں سنتاں کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ میرے نبی نے ایک کام کس طرح کیتا ہے، وہ کام میں بھی اسی طرح ہی کرنا۔ اپنی بول چال، اٹھن بیٹھن، کھانا پینا، نکاح و طلاق، صلح و جنگ، لین دین، ادھار، قرض، جتنے بھی دنیا کے معاملات ہیں سب دے اندر جدوں انہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
पैरवी कर लई और इताअत कर लई इन्हां कामां दे अंदर। हर काम च पुछया मेरे नबी ने की कीता, मेरे नबी ने की कीता, और ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਾਮ ਯਾਫਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ? ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਲਾਹ और रसूल की इताअत करते हैं फकत फाज़ा फौजन अज़ीमा, तो ऐसे लोग बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। एक कोई नुकता है ना, कुरान पाक के अंदर दो लफ्ज इस्तेमाल, मयूती अल्लाह व रसूल, कई जगह पे इस्तेमाल, लेकिन खुद ही कुरान मजीद ने तशरीह की है कि मयूती रसूल फकत अताअत, कि दो नहीं है, जिन्हें नबी की इताअत कर ली ते ओ दरअसल अल्लाह की ही इताअत, क्योंकि नबी कहंदा ही वो गल है जिहड़ी अल्लाह पाक नूं पसंद होवे, और अल्लाह ताला जिहड़ा हुक्म करे, नबी अपनी ख्वाहिश के नाल कोई हुक्म नहीं लगांदा। ते फौजे अजीम अगर चाहते हो तो फिर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी। और साडी जिहड़ी जिंदगी है, सारे लोग सिर्फ दाढ़ी ते ही जोर देते हैं ना, बस इन्होंने कोई सुन्नत का पता है, यकीनन है बहुत बड़ी सुन्नत है, लेकिन यार यही एक सुन्नत नहीं है। पूरी जिंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुक्म के मुताबिक गुजारने का नाम सुन्नत है। उस जिस हम अगे अर्ज किया, उठना किवें है, बहना, सौना, जागना, वाशरूम के अंदर जाना भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करना पड़ेगा। ये हदीसा ना बकायदा कि लोगों ने सहाबा कराम को ताने देते कि कैसा नबी है आपका जो आपको पेशाब करने के तरीके बताता रहता है। तो फिर सहाबी ने फखरिया किया कि हाँ सानू फखर है कि साडे नबी सानू दसते ने कि पेशाब किवें करना। फिर उन्हें तफसील दसी कि साडे नबी की कहते हैं कि पेशाब किस तरह करना है, खाने काबे की तरफ मुंह नहीं करना, फिर छिटा नहीं पानिया, फिर किसी लिद हड्डी या किसी मुकद्दस चीज नाल सफाई नहीं करनी। ये सारिया चीज़ों उस हदीस के अंदर बयान की गई हैं कि साडे नबी की ये शान है कि वो सानू सब तो आखिरी काम यही है ना बंदे का कि वो पेशाब करना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब की भी सानू हिदायत दी है। तो क्या बड़े बड़े मामलात के अंदर नहीं अल्लाह के नबी ने सानू हिदायत दी दी है, लेकिन यह साडा सारा का सारा मुआशरा है इन्होंने इंजे ना कोई मतलब कि गरज ही नहीं है। और अगर कोई शख्स नबी पाक की सुन्नत ते चलना चाहे, चलने भी नहीं देते। मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिहड़ी कोई चीज गुम जाए और वो मस्जिद के अंदर ऐलान करे, ते नबी पाक ने बददुआ दी कि या अल्लाह दुआ करो कि उस बंदे की चीज ना लगे। ये अल्लाह के नबी की हदीस है ना, लेकिन साडे लोग ने चलो उलमाए कराम ने कहा किसी का डंगर खूह च पै जाए, किसी का बच्चा गुम जाए, कोई शादी ब्याह का कोई मजमूई लोगों का कोई बड़ा ऐलान है, कोई जनाजा है, लेकिन यह जड़ियां कोई बैंगन बेचन आया है, कोई पालक बेचन आया है, कोई पौने बेचन आया है, 5 रुपये दे के ऐलान करवाता है। लड़ाइयां लगती हैं मस्जिद से, अद्धी टीम आती है कि ऐलान करो, जरा कोई शरीफ आदमी है वो कहता है हदीसे पाक है, इनको हदीसे पाक की कोई परवाह नहीं करते, चोरी छुपे ऐलान करने फर्ज नहीं करते। उन्होंने ख्याल है कि कोई तौबा नौज़ुबिल्लाह गलत काम है रोकना ऐलान को। लेकिन मेरे भाइयों, मैं तो जिदन की हदीस पढ़ी थी मैं तो इस अमल कर गया, मनो नहीं परवाह, कोई खुश होता है तो कोई नाराज होता है। इस काम तो एक बार होरे भी पैन लगे, लेकिन मैं वो भी अंगेज कर ले देना, लोगों की गल्लां सुन लेना, लोग करन ऐलान, लेकिन मैं सुन लिया कि नबी पाक ने बुरा समझा इस गल नूं, मैं मस्जिद के अंदर इहो जिहे ऐलान नहीं करता। मसला डूंघा है, लेकिन मैं सिर्फ एक मोटी जी गल की। इस तरह होर भी बड़ियां गल्लां हैं। ते कुरान पाक और हदीसां के अंदर फरमाया गया कि अगर तुसी अपने नबी की इताअत नहीं करोगे, नाफरमानी नबी की करोगे तो अल्लाह की भी नाफरमानी। और अल्लाह का नाफरमान कभी सोच सकता है कि मैं जन्नत के अंदर जावांगा? कोई गल है यार?
बस साडे लोग गल्लां गल्लां नाल ही चाहते हैं कि असी पार हो जाइए, अमल ना कोई करना पाए, जरा सारा भी अमल ना करना। हदीसे पाक है कि जिन्हें मेरी नाफरमानी की थी उन्हें खुदा की नाफरमानी की थी, और जिन्हें मेरी इताअत की थी उन्हें अल्लाह की इताअत। कितना एजाज है इंसान, देखो कितनी बड़ी गल है कि इंसान अपने नबी की इताअत करे और अल्लाह पाक उन्हें अपनी इताअत करार दे दे, और अपने नबी की नाफरमानी को अपनी नाफरमानी करार दे दे। वो जी हदीस असीं पढ़ने निकाह के मौके पे कि अन-निकाह मिन सुन्नती, कि निकाह मेरी सुन्नत है, फमन रागिबा फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया। एराज कहते हैं, इनकार डायरेक्ट नहीं है, ये है तुसीं इंज समझो कि कन्नी कतराना, उस गल तो मतलब है कि सैड मारनी, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं, सामना ना करना, ना भी नहीं करनी तो करना भी नहीं। तो फरमाया जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया फलैसा मिन्नी, ऐसा शख्स हम में से है ही नहीं। देखो जरा साढ़े लोगों ने माहौल समझा है, कुछ दाड़ियां, कुछ झाड़ियां, कुछ लामोआता साड़ियां, इन्होंने नगमे बनाए थे, दादी दादे दाड़ी गौना, इन्होंने गंदे लफ्ज़ों वास्ते दाड़ी नजर आती। अज तो 20-25 साल पहले जाने हैं जिन्हें दाड़ी रखी ब्याह ही नहीं होना, मंगनियां टुट गई लोगों की। मेरा दाड़ी से जोर नहीं है, मैं तमाम सुन्नतां की गल करना, बाकी भी तो बेशुमार सुन्नतां है। ते सुन्नत जिहड़ी है नबी पाक दी, उन्होंने ही कहते हैं इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते जिस बंदे ने नबी पाक दी इताअत का ख्याल ना किया, ओदी कोई काम होता अल्लाह को कबूल नहीं। खुद नबी पाक ने कढ़ दिता कि मेरे गुरु है ही नहीं, ये जन्नत की दौड़ चों के बाहर निकल गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे च के जिहड़े लोग नबी पाक दी इताअत नहीं करते, मुखालफत करते हैं, एक बंदा जो कह दे ना कि यह हदीस आ गई है नबी पाक, उस तो बाद किसी मुसलमान का काम नहीं कि अपनी गल करे। मतलब कभी कभी कहना साडा हैड मास्टर सी बड़ा पढ़िया लिखा, फौत हो गया एक्सीडेंट, ते स्कूलों च पढ़े लिखे लोग ना अक्सर गल्लां करते हैं, मसले भी होंगे हैं। ओदी मैं खूबी देखी सी, अल्लाह ताला ओदी मगफरत फरमाए। अब्बास अली इत्थे मस्जिद च एक बारी आया, बड़ी बहस होनी, बड़ा उन्हें रौला पांदे होना, जदों मैं कभी कह देना कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, यकीन जानो उत्थे चुप, अल्लाह ये होन नहीं गई। जदों किसी ने अगों यह कह दिता है ना कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, फिर उत्थे हुण मेरा गल करना बनता है कि जदों इंसान के सामने ये बात आ जाए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, हर किस बंदे का काम नहीं कि उत्थे फिर बंदा अपनी घुस दे के रखे। लेकिन सवाल यह है कि हुण ते लोग इत्थों तक पहुंच गए ना कि कोलोंगे पे करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, कोलोंगे पूछो यार कितने लिखा वा, बस सुनिया सुनाइया। एक नवा काम निकलिया कि अल्लाह जाता, अनपढ़ ते जाहिल लोग भी गल्लां करेंगे अल्लाह ने अंज आख्या ते अल्लाह के रसूल ने अंज आख्या। ये उस तो अगला खतरनाक दर्जा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई गल मैं ना की दी होए और कोई बंदा मेरी तरफ हुए कि अल्लाह के नबी ने की है, अल्लाह के नबी ने एंड किया और मैं ना किया हो, तो ऐसा शख्स अपना ठिकाना जहन्नम में बना दे। कोई खेद है दीन, कोई मजाक है जिहड़ा साडे लोगों ने समझ लिया है, जो मर्जी करो, ना दीन ते कोई हर्ज आया, ना इस्लाम ते कोई फर्क पिया, ते ना कोई ये लोग पास ही पास ने, सारे पुठे काम करते हैं। ते जनाब बस तलावत करा लो घर, मौलवी साहब को बिरयानी खवा दो, तमाम गुनाहों से पर्दा पै जाएगा। नहीं भाई, बिरयानियां गुनाहों ने बख्शा नहीं सकदियां। मेरे टेढ़े काम जिहड़े ने ना, उन्होंने बिरयानी नाल सिद्धिया नहीं किया जा सकता। साडे माहौल के अंदर अक्सर है जिहड़ा हराम खोरियां करके, रिश्वतां खा के, दो नंबरियां करके, भैणों के हक खा के, भरावां दीयां पैलियां वाह के, पुठे काम करके, ते जनाब अल्लाह जी दौलतमंद हो चुके हैं।
اور ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੌਲਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੱਠੇ ਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੂਸਤਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਨੇ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਜਾਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? तमाम अमल बेकार हो जाते। तो कुरान पाक के अंदर लिखा कि फलयहज़र अल्लज़ीना आमनू फलयहज़र अल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही। लोगों को डरना चाहिए इस बात से कि अल्लाह के नबी की मुखालफत करें किसी काम में। अल्लाह के नबी की मुखालफत और की है कि आपने जो हराम खाने तो मना किया वो खाता है, तो खाते मना किया तो खा देता है। नबी ने कहा धियां दा हक दे नहीं दिंदा, नबी ने कहा कि अपने भरा दा हक दे नहीं दिंदा, नबी ने कहा खलाक नाल बात करो बद खलाक, नबी ने कहा कि निकाह तलाक के मामले के एहतियात करो उन्हें नहीं की। ये सारी चीज़ां की है, ये अल्लाह के नबी की मुखालफत है। तो कुरान की कहता है डरना चाहिए उन लोगों को जो मेरे नबी के हुक्म की मुखालफत करते, और अगर वो बाज ना आए तो क्या होगा? अंतुसीबहुम फितनतुन, कोई मुसीबत कोई आजमाइश उनको घेर लेगी, फिर कोई बला आएगी। बला कहते हैं मुसीबत नूं, आजमाइश नूं। बला कोई ये नहीं कि बड़े मुंह वाला कोई डंगर होंदा है, नहीं। बला जिहड़ी है इहनूं अरबी दे अंदर इहदा तर्जुमा है आजमाइश। कोई फितना इहनूं घेर लवेगा, तो या फिर तुसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या फिर सख्त दर्दनाक अजाब मिलेगा ऐसे शख्स को जिहड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत दे करने के बजाय मुखालफत करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत अगर ना की जाए, ये मैं अगले जुम्मे तुहाडी खिदमत च अर्ज करांगा। इंसान नमाज भी नहीं पढ़ता, कोई मतलब कहना मैं कुरान ही बस, कुरान पाक दे अंदर अहकामात मौजूद ने, लेकिन बाज़ अहकामात ऐसे ने कि जदों तक नबी पाक की इताअत और फरमाबरदारी ना की जाए, इंसान कुरान शरीफ पे अमल नहीं कर सकता। ये उलमा कराम इस गल नूं जानदे ने। मिसाल के तौर पर कुरान पाक के अंदर जा बजा लिखे है कि नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, नमाज जड़ा सुस्ती करेगा फवाइलुल लिल मुसल्लीन, हाँ जी, नमाज नूं दायमी पढ़ो, नमाज की हिफाजत करो, बार बार। लेकिन पूरे कुरान के अंदर किसी एक जगह से भी यह लिखा था कि 5 नमाज़ां पढ़ो, ठीक है। पूरे कुरान मजीद के अंदर रकातां नहीं लिखी दियां कि सुबह दियां कितनियां ने, दोपहर दियां कितनियां ने, असर दियां कितनियां ने। पूरे कुरान पाक के अंदर ये चीज़ां नहीं लिखी दी। ते अगर कोई शख्स अल्लाह के नबी की इताअत ना करे तो इसका मतलब ये निकलिया कि वह कुरान की भी इताअत नहीं कर सकता, क्योंकि कुरान की इताअत करने वास्ते अल्लाह के नबी की इताअत करनी पड़ेगी। क्योंकि हुक्म बाजे ऐसे ने कि वो डबल चलते हैं, अद्धा इत्थे है तो अद्धा इत्थे है, इत्थे इजमाली है तो उत्थे उन्होंने खोल के तफसीली बयान कर दिता गया। होर भी है इस तरह के, मतलब सफर का मामला, एहराम के मामले ने, इन्हां दे विच अगर कोई शख्स नबी पाक की जिंदगी को ना देखे, उन्होंने पैरवी ना करे, फिर मैं कुरान शरीफ का ही अमल कर लेना, तो कुरान शरीफ के उत्ते कलिया अमल नहीं कर सकता जदों तक अल्लाह के नबी की जिंदगी को ना देखेगा। ते अगली बात है कि यह पता चलिया कि इताअत करनी जरूरी है। इताअत ना करने का नुकसान यह है कि अल्लाह की नाराजगी, और ऐसा शख्स जिहड़ा इताअत नहीं करता, अल्लाह पाक उन्होंने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने अपने विचों ही कर दिता। अपने विचों मतलब मेरी उम्मत, मेरे साथी, मेरे नाल रहने वाले लोग, दुनिया और आखिरत के अंदर मेरे पैरोकार, फरमाया फलैसा मिन्नी, नहीं है वो हम में से। वैसे तो होर भी बड़ियां गल्लां वास्ते आपने फरमाया कि ऐ भी नहीं साडे चों, ऐ भी नहीं साडे चों, मतलब मन गशा फलैसा मिन्ना,
जिस बंदे ने अपनी जिनस में मिलावट की, कणक के अंदर मिट्टी रला दी, मूंजी च पानी पा लिया, दुध च पानी पा लिया, गोहे च मिट्टी पा के पथ लिया, सीधा सीधा के मेरे नालों का कोई ताल्लुक नहीं। कोई मुश्किल मसले नहीं है। अगर कोई शख्स गंढ बन ले तो बहुत आसान है कि भाई जिथे हुक्म आ गया मैं उठे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करांगा, और कभी भी अपने दिल के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत का ख्याल नहीं लिया। मुखालफत करनी तो बड़ी आसान है ना। मसलन नबी पाक ने कदों आख्या खुसरे नचाओ, नचाए ना भूत हो गए। अला हाजर के आस शादी ब्याह पे ऐसी जो कुछ करने पे चार चार प्रोग्राम करने पे हैं, फिर उन्होंने प्रोग्रामों के उत्ते खर्च खराबा नोट जी ते हुण ते कवालियां भी एक दिन वास्ते रख लिया, फिर जनाब मुजरे ते मजे की बात है कि ये लोग समझते हैं कि असी जनती हाँ सीधे, असी कोई कोई बुरा गुनाह नहीं किया। जबकि मैं तुहानू पिछले जी में भी दसिया कि एक शख्स सोने की अंगूठी पा लेंदा मर्द, ओदी किहड़ी इबादत कबूल होनी है? उन्हें नबी की मुखालफत की थी। मर्द को सोना और रेशम पहनना मना है। छोटी छोटी गल है ना, इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी कि ला तहकीरन मिनल मारूफ शैया। लोगों छोटा जिहा भी नेकी का काम है ना, उन्होंने हकीर ना समझना। यह ना समझना कि राह च कोई कंडा पिया है या केले का छिलका है या रोड़ा पिया है, यह जेड़ा कोई नेकी का काम है। फरमाया बाज़ औक़ात छोटा जिहा नेकी का काम करता है कोई शख्स, फिर मिसाल दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मसलन रास्ते से कोई तकलीफ दे चीज हटा देता है, या किसी बंदे को पानी पिलाने के लिए उसके बर्तन में पानी डाल देता है, या किसी को सवार होने में मदद कर देता है, तो बाज़ औक़ात अल्लाह इस छोटी छोटी नेकी की वजह से भी बंदे को जन्नत में दाखिल कर देता है कि वो सुन्नत रसूल पाक होती है। और फिर ये उलट फरमाया कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान कोई छोटी बुराई करता है, मामूली बुराई, और वो समझता है कि यह की है, लेकिन वो छोटी बुराई जब जमा होती है तो वो छोटी बुराई इंसान को जहन्नम के अंदर लै जाती है। तो फिर इस इज्तिमा के अंदर ये गल निकली कि सानू हर कीमत पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का ख्याल रखना चाहिए। ए ना सोचियो कि नबी पाक की इताअत की आखिरत च लभेगा सब कुछ, दुनिया में कुछ नहीं लभेगा, ये ख्याल गलत है। दुनिया के अंदर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का सवाब मिलता है। मसलन हदीस पाक तुसीं सुनी दी है बड़ी बारी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों जंग उहद का मौका सी, जंग खंदक का सारी, ते 1400-1500 सहाबी जिहड़े ना उन्होंने मदीने के गिरद नहर कढ़ी सी। दुश्मन बाद लोग कहते हैं 5000, बाद लोग कहते हैं 10,000 दुश्मन मदीने के कोल आके डेरा ला लिया कि अज इस्लाम को मिटा दिता जाए। और वो अंदर बड़े बड़े सरदार सन। उन्होंने दिनों च बड़ी मुश्किल सी। साडे लोग ना बस लजीज बिरयानी खान के शकीन है, बड़ा मजा आया बिरयानी का, बिरयानियां खाओ, लेकिन जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदकां कढ़ियां ना, खंदकां भी कढ़ने पैंदियां, इत्थे तलवारां फड़ के जिहाद भी करने पैंदा, इत्थे जान ते भी खेडना पैंदा, उदों नस जांदे ने। ते जदों बिरयानी पकदी है उदों आंदे ने बड़ा मजा आया बिरयानी का, यही इस्लाम है, सब चंगा है। ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भुखे नहीं सी कि कमजोरी सी, उसे जान के आपने अपने पेट के पत्थर बते दे हदीसां दे अंदर आके दिखाए सन लोगों को। 1400 बंदा दिन रात नहर कढ़दा पिया, दुश्मन का खौफ भी है, भुख भी है, ते सख्त सर्दी का मौसम सी। ते एक सहाबी हज़रत जाबर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने बीवी ने उन्होंने कहा सी कि नबी पाक नूं ए छोटा जिहा कि लेला कर के ज़िबा करने आ, ते तुसीं जाके नबी पाक नूं लै आओ ते खाना खा लैण। ते नाले हदायत की थी कि देखियो नबी पाक नूं दस दिओ कि बहुते बंदे आ जान ते रसवाई ना होवे, मतलब है कि दस्यो कि एक लेला या छोटा थोड़ा काम है, ताकि अल्लाह के पाक पैगंबर एक दो दोस्त नूं नाल लै आउण ते ओह रज के रोटी खा लैण, ते किते तुहाडा ऐलान जिहड़ा है ना उहदे नाल इह ना समझण कि सारे लोग आ जाण ते
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਚ। ਅੱਛਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਜਾਬਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੌਜਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਜਾਬਰ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ हजरत जाबर जेडे ने खौफजदा हो गए और पहले ही नबी पाक को दौड़ के आके अपनी बीवी को आखन लगे कि यह काम होया लेला निका जिहा ते जब वो जान लगे ना हजरत जाबर ते नबी पाक ने ऐथे मैं जिहड़ी गल तुहानूं लियाउणा चाहना है फरमाया कि जाबर जदों तक मैं ना आ जावां हांडी चुल्हे तू लाई ना। देखो जरा तवज्जो देओ, इथों पता चला इताअत नबी की की चीज है। जदों तक मैं ना आ जा चूल्हे तू हांडी ना लाई, और जदों तक मैं ना आ जावा अपनी ज़ौजा नूं कहीं के रोटियां उदों तक पकानियां शुरू ना करे। ऐसे तरह ही इताअत की ना, फिर उन्होंने ना हांडी नूं चुकिया, उसे तरह रहन दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, फिर बड़ी मशहूर हदीस है कि 10-10 बंदियां नूं अपने हांडी चों पा के दिंदे गए ते 1400 बंदियां ने रोटी खा ली। एक मौजज़ा है गुफ्तगू का, लेकिन मैं की करना चाह कि अल्लाह के नबी ने जो कहा सी ना कि देखी ना लाई भी ना चूल्हे तू, अगर चूल्हे तू ला लंदा या देख लंदा पिछे कितना रह गया, फिर वो नबी पाक की मुखालफत हो जानी थी। ते जदों 1400 बंदियां ने खाना खा लिया ते हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला को कहते हैं कि वो हांडी असी देखी वो उसे तरह ही सी उबलती पई, चूल्हे तो उसे तरह ही उबलती पई सी ते आटा भी उन्ने दा उन। दूसरे पासे देखो हजरत अबू राफे एक सहाबी, उन्होंने भी एक दिन दावत कर दी। आप उन्होंने घर तशरीफ ला के उन्होंने भी कोई बकरे भेड़ा उदों आम सन, उन्होंने ज़िबा की, छोटे छोटे बकरे 5-5-6 किलो के भी होंगे, उन्होंने पका लई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं पसंद सी बकरी का अगला जिहड़ा हुंदा ना दस्ती जिन्हों आंदे उन्होंने पसंद फरमाते सन। ते जदों पान लगा सालन ते पूछा या रसूल अल्लाह किहड़ी जगह दा पावां, आपने फरमाया दस्ती लै आया। ते वो हदीस तो इंज पता चलदा जिवें वो दस्ती साबित ही सी, छोटे बकरे की कितनी होएगी दस्ती। अबू राफे दस्ती जिहड़ी है ना वो पा लिया। हुण अबू राफे जिहड़े दस्ती पा लिया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात दे साथी होणगे दो, उन्होंने तनावल फरमाई। फिर फरमाया होर लिया, जनाब किहड़ी जगह का, फरमाया दस्ती का लै। फिर उन्होंने दस्ती पा के लै आंदी। तीसरी मरतबा नबी पाक ने फिर क्या होर लिया, पूछा या रसूल अल्लाह हुण किहड़ी जगह का लियावां, फरमाया दस्ती का लै। इत्थे देखियो जरा, इत्थे मैं तुहानूं रोकना चाहना थोड़ी देर वास्ते। सहाबी ने सोचा कि बकरी दी तो 2 ही दस्तियां हैं, ते नबी ने तीसरी भी मांग ली। जवाब दिता या रसूल अल्लाह मैं तीसरी किस तरह लियावां, 2 ही दस्तियां होंदियां ना, 2 मैं तुहाडी खिदमत च पेश कर दित्तियां ना, कोई 3 तो नहीं होंदियां दस्तियां जिहड़ी मैं तीसरी भी लियावां। ऐ हुण हो गई ना नाफरमानी। फिर उत्थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सी कि अबू राफे अगर तू मेरे आखे लग के दस्तियां कढ़दा रहंदा ते निकलदियां रहनियां सन, निकलदियां रहनियां सन, लेकिन अफसोस के तू हाँ जी मेरी गल दे जवाब देने लग गया कि ना तीसरी दस्ती के नहीं होंदी। भाई यह रूहानी चीज़ां ने, ये खुदा दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत तो हासिल होंदियां ने। एक माई नूं जिहदा कोई नहीं सी दुनिया के उत्ते, जनूबी पंजाब के एक आलम दीन ने वाकया बयान किया सी, मैं खुद नहीं पढ़िया, बहुत पहले ने। ते उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कोई कैंकरी शंकर रखे थे सन घर अपनी झोंपड़ी ते सुभान अल्लाह वगैरह पढ़ते। उन्हें बाद फरमाया या रसूल अल्लाह मेरा ना कोई असूला चो है, ना फरोआ चो है, ना कोई औलाद है, ना माँ प्यो च कोई है, ना औलादा चो, मैं करना मैं चली मैं की करा, ना मेरा कोई खाने देने वाला, ना मेरा। आपने ना ओदे लोटे दे अंदर कुछ खजूरां पाइयां ते उत्ते दे ता कपड़ा, और उन्होंने फरमाया कि जदों तैनूं भुख लगे अल्लाह अल्लाह करदी रहा कर, जदों भुख लगे खजूरां विचों कढ़ियां ते खा लिया करी ते पानी पी लिया कर, तेरी जिंदगी आसान गुजर जाएगी। लेकिन देखी इहनूं विच ना देखा करी कभी। तो माई 6 महीने तक ते खांदी रही वो खजूरां,
फिर किते ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਲੱਗ ਗਈ तो ਉਹਨੇ आखे 6 महीने हो गए ना खजूरां कटनी पईयां चुक के देखिया कि पिछे किनियां रह गई ते पिछे ओनियां ही सन जिहड़ियां नबी पाक ने रखियां लेकिन फिर की होया खत्म नबी दे हुक्म के खिलाफ जो चल पई माई अगर ओ पिछे ना देखदी अल्लाह दे नबी दी इताअत करदी ते क़यामत तक खांदी रहंदी ओ खजूरां मुकणियां नहीं सी ते मेरियां इन्हां गल्लां दा नतीजा ये निकलिया यार असीं किहड़ी बरकत असीं लभने पए आ किस तरह नहूसतां दूर करने दी कोशिशां करने पए आ सालों साल हो गए ने सानू उमरां लंघ चलियां ने असीं अजे तक अपने प्यारे नबी दी इताअत ही नहीं कर सकते असीं चुनके चुनाचे अगर मगर इसलिए उसलिए यहाँ था वहां था हाँ जी सुबह थी शाम थी ऐ साडे बहाने ने जिन्होंने सानू इत्थों तक और आपने फरमाया कि मेरी इताअत ना करोगे ना जिल्लत मिलेगी जिल्लत और तुसी निक्के बन जाओगे तो तुम्हारी हैसियत खत्म हो जाएगी मेरी इताअत न करने दे जुर्म दे अंदर तो फिर मेरे भाइयों अगर मेरी इस गुफ्तगू ने कोई दिल च असर पाया कम अज कम बंदा साडा की बिगड़ चलिया जदों सानू पता चले कि मेरे नबी दा वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु जदों पता चले मेरे नबी ने यह गल कीती है तो बंदा फिर ठीक है जदों पता चले कि नबी ने मना किया भी मैं नहीं करता गल मुकी कितना मुश्किल काम है जिहड़ा गंढ बन लैंदा ना बंदा अल्लाह फिर उसकी मदद करता ते असीं अहद कर लईए रबीउल अव्वल साडी जिंदगी मेरी जिंदगी 60-62 गुजर गए हैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਰ ਰਬੀਉਲ ਅव्वल ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਢ ਬੰਨ ਲੈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਬੀ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ 60 ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਆਖਰਤ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਤਾਅਤ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ और गुनाहों की बख्शिश के नाल नाल गुनाह जहन्नम ने देखो ना ये वाकयात में बयान किए ना ये कोई अगले जहान दे थोड़ी है ये इसे दुनिया के वाकयात ने इत्थे हड्डियां च बरकतां पईयां ने इत्थे आटियां च बरकतां पईयां ने किस गल दी वजह नाल अल्लाह दे नबी दी इताअत दी वजह दे नाल ते फिर असीं अहद कर लईए कि असीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इताअत करांगे अगली गल जिहड़ी मैं अलहदा तुहाडे नाल करना चाहना 2-3 मिनट ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੱਸਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇਲਮ ਚ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਨ 1947 ਦੀ ਹੀ ਚੱਲੀ ਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇਸਰਾਈਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਹੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬਣਿਆ बाकी पूरी दुनिया के अंदर कोई मुल्क मुसलमान मुल्क 57-52 है लेकिन कोई मुल्क इस्लाम के नाम से बनया का नहीं है बाद मुसलमान हो गए बढ़ गए सन 1947-48 को लैके यहूदियों ने वो अली चुकी दी है जिहड़ी कुरान शरीफ के अंदर लिखी हुई ना वादे की पासदारी करते ना कोई रहम है ना इन्हां दे विच कोई असूल है इन्हां ने चंद मील जमीन लई सी उदों बाकी सारा फलस्तीन सी ते अज सूरत हाल यह है कि सारा फलस्तीन ही उन्होंने कब्जा कर लिया जो परौने आए सन जेडे आंदे ने लस्सी लैन आई घर वाली बन गई सुना लगा तुसीं ये लस्सी लैन आए सन ते इन्होंने हुण कहंदे ने कि फलस्तीनी किते चले जाण इत्थों निकल जाण इत्थों और फिर जदों फलस्तीनी निकलते ने बेचारे वो निकलदे ने उत्ते भी बंब सुनते 60,000 लोगों को इन्होंने शहीद कर दिया 30,000 सिर्फ मासूम बच्चे ने और औरतों का कोई और पूरी दुनिया इस जुल्म सितम से खामोश है ना अपना जंगबंदी देखते हैं ना हस्पताल देखते हैं ना वो देखते हैं कि स्कूल है हत्ता कि जो किते फाका ज़्यादा लोगों को कोई कितों चौल शौल कितों मिलते ना खाने वास्ते और जमा होते हैं ते चौल मिलने तो पहला इसराइल उन्होंने बंब मारता है और वो मौत पहले मिल जाती है उन्होंने बेचारे इस तो पहला कि वो पानी का घुट या कोई खुराक खा लै मैं जी गल करना चाहना वो ये है कि
मुसलमान बेहिस नबी की इताअत किथे गई। नबी ने तो फरमाया सी कि मुसलमान एक दीवार की तरह, अगर किसी को किसी सहरा के अंदर कंडा चुभ जाए तो इत्थे मुसलमान को उस कंडे की पीड़ होनी चाहिए है। और आपने फरमाया सी कि दीवार तरह, एक हदीस के अंदर तो इस तरह सी कि एक जिस्म है कि जो अख दुखे बंदे की तो सारा जिस्म ही दुखदा है। इस तरह अगर किसी जगह पे मुसलमान दुखे तकलीफ तो है, पूरी दुनिया के मुसलमान तकलीफ हों। लेकिन तुम देखते पए हो, लेकिन मैं कहूँगा कि इंसानियत जिंदा है। यूरोप के लोगों ने बिल आखिर तय किया कि भाई नहीं इस तरह काम चलता, असी सारे मुल्क रल के, एक गैर मुस्लिम ने वो गैर मुसलमान ने कोई 40-45 जहाज़ों के उत्ते समान लदया, दवाइयां लदियां, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और लीडर। और मजे की गल है कि वो उन्होंने लीडर स्वीडन की एक लड़की है तो 25-30 साल की, उन्हें सारी मेहनत करके 500 बंदे और 45-44 जहाज जो दवाइयां नाल ते सारे समान ना करे। उन्होंने कहा कि अभी मुहासरा तोड़ के गजा जाने जाना, देखा कौन सानू डकदा है। पूरे यूरोप चो बंदे कढ़ के उन्हें नाल ले ने, पाकिस्तान के लिए मुश्ताक साहब नाल तुसीं रोजाना पढ़ते पे हो। और उन्हें समुद्र का मुकाबला करके, तूफानों का मुकाबला करके, दुनिया का मुकाबला करके उत्थे पहुंचे ने। लेकिन कश्तियों के उत्ते हमला इसराइल जरा देखता नहीं है, यहूदी की यह फितरत है, ये वादा करके मुकरदा है, ये अहदो पैमान तोड़ता है, ये जुल्म करता है, इसका कोई असूल नहीं। इन्हें राती ये काम किया कि वो फड़ ले और मुश्ताक साहब ने फड़, पाकिस्तान के 4-5 अफराद ने जिन्होंने लीडर ये ने, और वो 500 बंदा भी गिरफ्तार करके फिर इसराइल लै गए ने। और वो कश्तियां जड़ियां ने ज़ाहिर बंद हो गई ने, हालात बड़े खराब ने पूरी दुनिया के उत्ते। इस वक्त यूरोपी मुल्कों के अंदर वो स्वीडन होए, वो अमरीका होए, वो कैनेडा होए, वो इटली, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, पूरी यूरोप एडे एडे वड्डे मुजाहरे वो कर रहे हैं आज के। इंसान कहता यार इंसाना का एक समुंदर और गैर मुसलम है, वो कह रहे हैं कि इसराइल और कुछ मुल्कों ने, कोलंबिया के मुल्क है, उन्होंने कहा दफा हो जाओ इसराइल के जेडे सकीन ने साडे मुल्क जो धक्के दे के बाहर कढ़ छड़े। आयरलैंड एक मुल्क है, उन्हें धक्के दे के बाहर कढ़ छड़े रहे। लांती तुसी कमीने ते बदबूदार लोग हो, तुसी जेडे यहूदी हो। शुमाली कोरिया का जो सदर है, जरा बोलता भी नहीं किया, उन्हें भी कहा कि मनु हमला करना पड़ेगा। तुर्किया ने कहा कि हम नहीं भाई सबर होगा साढ़े को। इस हालात के अंदर पूरी दुनिया, गैर मुस्लिम दुनिया भी उस जुल्म दे के दीवार बन गई है। लेकिन मुसलमान जड़े ने अफसोस के खामोश, अफसोस के खामोश ने। मैं क्या अर्ज करना हूं कि इंसान के दिल के अंदर जरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ना कि मुजाहिद जदों चलता है, मुजाहिद की अज़ान हो रहा है और उसकी मुल्ला की अज़ान, और मुल्ला की अज़ान खाली मुजाहिद की अज़ान नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस कदम के उत्ते अल्लाह के रस्ते से चलने खाक पै जाए, गर्द पै जाए, उस कदम के उत्ते दोज़ख की अग हराम हो जाती है। वो कदम किथे गए ना मुसलमानों के। बहरहाल आज पाकिस्तान सारे के अंदर लोग इज्तमात कर रहे हैं, इसराइल की बर्बरियत और जुल्म के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे और मुजाहरे करेंगे। ये मुजाहरा कोई छोटी चीज नहीं होती। एक दुनिया में पैगाम जाता है, दूसरा साढ़े अंदर में भी चेक होता है। तुम देखो ना कि साहबा कराम नबी का हुक्म मान के ते गर्दना कटा देंगे सन, घर भी नहीं सन जाते, बाहरों के टुर जाते सन। ते मुसलमान हुक्मरान ने जेडे खौफ दे विच मुबतला ने, इस्लामाबाद दे अंदर तुसी इसराइल दे खिलाफ गल नहीं कर सकते। साडे जिहदा नाम इस्लामाबाद है, मुश्ताक ने कहा ना पुलिस वाले ने, तू इत्थे रोज दिहाड़ी इज्तिमा करना है, इत्थे एहतजाज करना है, जहां गजा चला जा। ते मुश्ताक सेनेटर मुश्ताक गजा चला गया, उत्थे फिर उन्हें स्पेशल पैगाम रिकॉर्ड कराया। उन्हें कहा ओ जे इस्लामाबाद पुलिस वाला मैनू नहीं सी ना करन दिंदा, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਗਜ਼ਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਜੁਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹੁਰਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸਾਂ, ਗਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਜਦੇ ਯਕੀਨਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਦਰਦ ਮਿਟ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਇਸਲਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 2 ਕਦਮ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬੇਵਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਲਾਵਤਾਂ ਵੀ ਬੇਵਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਰੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੁਆ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਉਮਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਸਲ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਕੁਛ ਬਚਾਣਾ ਹੈ। ਅੰਬਿਆ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਤੀਨ, ਉਰਦਨ, ਸ਼ਾਮ, ਮਿਸਰ, ਇਰਾਕ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਬੂਹਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਠਾਏਗਾ, क्या ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਏਗਾ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ? क्या खुदा ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ नहीं सुनेगा? क्या फरिश्ते लिखणगे नहीं कि जनाब ना देखे हुए सन ते कलमे दी बुनियाद ते लोग निकलते रहे ने, ते जे गैर मुस्लिम एहतजाज कर सकते हैं और लाखों की तादाद च, क्या असी 200 बंदा भी निकल सकते? असी अपने कदम नूं इंशाअल्लाह रुबान करांगे और अहद करांगे कि अल्लाह असी सिर्फ बाजार तक नहीं, अगर तू सानू इजाजत लै दे ते असी गजा भी जाके अपनी गर्दन कटाने को तैयार हैं। अल्लाह पाक अमल तौफीक अता फरमाए। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।